sweat, determination and hard work. A very good afternoon to everyone present here. I, Said Hassan Shah. And I, Hakima Banu. It's a great pleasure to welcome you all. Such noted personalities as our guests on today's occasion. Let me extend a warm welcome to all of you. Thank you very much for joining us today. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. I invite members of Zamba Foundation to welcome our distinguished guest with traditional khatab. So, Zamba is a registered charitable trust working in the field of education and health. It was established in 2015 and registered in 2017. The agenda of today's meeting is to review the journey possible from the administration and civil society alike. Therefore, without wasting your precious time, we would like to release a short documentary on our journey so far. Please have a look. हमारे सफ़र की शुरुआत होती है 2015 के एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग इनिशिएटिव से, जिसके दौरान हमें करगिल के पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ओवरऑल चैलेंजेस को जीने का मौका मिला। उस लम्हे में हमने इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड और मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम वजूद में लाने की ठानी। इन गुज़रे 5 सालों में वो बीज एक पौधे की शक्ल लेता हमें दिख रहा है और आज का प्रोग्राम उस सफ़र की एक झलक आप सब तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। During the difficult periods through the pandemic, Salden and our Zamba has shown their persistence, their perseverance and their patience. As we look into the future, they inspire confidence that there is more, much more yet to come. I wish them all the very best. I never interacted with this kind of forums. It is very heartening to see that this kind of things are being done by young generation and young people to nurture our small kids, to develop this kind of things and learn, come up from these such remote areas. मतलब I'm really understanding the whole thing what you are doing. I would love to be a part of your whatever you are holding. Would like to attend those sessions with the children. It will be learning for people like us also. We have never experienced during our childhood. We never saw these things. किताबें खड़ी होती थी, किताब में जो लिखा है उसको पढ़ो, एग्जाम दो और नंबर लो चलो. It will be a very nice thing to see the kind of things you are developing, and it will be a learning for us, and whatever contribution that as with our experience we can do, I would like to be a part of it. I'll get in touch with concerned people, definitely. Really, a younger generation are doing a very good thing in the society. Place like Kargil. It's really highly appreciable, and their contribution has already put forth, and they are doing their best, and results are also being seen, and we have seen in their presentation. It was a nice documented and nice presentation. We saw it, and from that onwards, from that presentation, I can make out that your contribution is a very, very good and very excellent job. And it is my opinion that we should carry on like that. And as Colonel Saab said, I am also want to be a part of it, though we have a very tight schedule. But anyway, we'll spare time like this and we'll interact and go with you all and participate in wherever you have those projects. And regarding funding part, we have lots of schemes in CSR SD,
that is corporate social responsibility and sustainable development. And we used to sponsor like this kind of projects like in health issues, education, rural development, environment. All these are broad topics or projects, and you can meet me or consult with me, and you can send the schemes for funding. I'll try my best to put it up to our competent authority for approval. Once it gets sanctioned, we can always go ahead with the project. जो इनिशिएटिव्स आप लोगों ने पिछले सालों में लिया है उसका किस तरह का आउटपुट इस वक्त देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में किस तरह की और भी कोशिश रहेगा स्कूलों को ट्रांसफॉर्म करने की? जी, जो जम्बा एनुअल मीट रखने का हमारा मेन मोटिव यही था कि यहाँ के जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या मतलब करगिल में लद्दाख में रहने वाले डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग हैं उन सबको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चले, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो इस तरह का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि ये टाइम ठीक रहेगा, इसीलिए हमने ये एनुअल मीट किया। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पहले हमारा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम एक होल चाइल्ड वेलबींग प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हम स्कूल्स के साथ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जिन प्रोसेसेस पे जिन इनिशिएटिव्स के थ्रू हम स्कूल्स पे काम कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी को भी इंगेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंगेज करना और सभी को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लेके साथ में चलना। क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे पे काम हो लेकिन अगर मुशायरे हमारे कम्युनिटी में हमारे फैमिलीज़ में कोई चेंज ना आए, वहाँ पे अप्रोच वैसा ही रहे, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को पहुँचने वाला नहीं है। तो अगर हमें किसी भी इनिशिएटिव को सस्टेनेबल बनाना है, चाहे वो हम होलिस्टिक लर्निंग का बोलें या फिर हम 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में इनकलकेट करने का बोलें या फिर एजुकेशन के तरफ पूरा अप्रोच को ही अगर हम लेके चलें, तो अगर हम सिर्फ स्कूल में ही काम करें तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम अपने इनिशिएटिव्स में हमारे कम्युनिटी से स्टेक होल्डर्स को इंगेज करते हैं, चाहे वो वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो या फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हो। तो हमारा एक इंक्लूसिव अप्रोच रहता है काम का। सर, जम्बा के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये इनिशिएटिव आप लोगों ने जो लिया है स्कूल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस स्कूल में किस तरह के आउटपुट हैं और क्या रिस्पॉन्सेस आज के से मिला है? एक्चुअली ये आज एनुअल मीट हमारा पहला एनुअल मीट था, तो हमने तकरीबन 10 दिन से इसी की प्लानिंग कर रहे थे। इसमें हमने मेन हमारा जम्बा का इंट्रोडक्शन एक रखा था पब्लिक से, जो हम सोशल मीडिया पे तो जनरली लगाते रहते हैं, कोई न्यूज़ आता रहता है उस जम्बा के बारे में। तो ये इवेंट था स्पेशली पब्लिक के साथ रूबरू होने में और पब्लिक इंटरेक्शन और उनकी सजेशंस वगैरह लेने के लिए, और जो भी क्रिटिक्स करना चाहते हैं उनको हमें सुनना था। और अनदर एक और इसमें ये था कि क्राउड फंडिंग का हमें पिच करना था। उसके लिए हमें NHPC जो आए थे यहाँ पे GM, उन्होंने भी कहा कि वो फंडिंग करेंगे, और इसी तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स भी उन्होंने हमें बाद में यहाँ पे आश्वासन दिया कि काफ़ी हेल्प करेंगे, फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्प रहेगा जम्बा को, बिकॉज फंडिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क एंड सर्वाइव। और हमारा मेन ये था कि हमें जो जम्बा का अभी तक का सफ़र था, अभी तक जितना काम किया इन 5 साल या 6 साल 7 साल में, वो हमें पब्लिक को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना था। और इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया और एक प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दिया कि किस तरह से हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ आज हम पहुँचे।